السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میں ہوں سمینہ رانا. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مبشر لقمان صاحب. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر ہے جی. سر آج کے پروگرام میں میرا صرف ایک ہی سوال ہے اور اسی پر آپ کے ڈفرینٹ سارے جوابات ہوں گے. مبشر صاحب، سینٹ میں ریٹائرڈ ہونے والے اراکین نے آج الوداعی خطاب کیا اور اس خطاب میں اپنی منفرد اور مختلف خواہشات کا اظہار کیا. وہ ساری خواہشات میں آپ کے سامنے رکھوں گی اور میں چاہوں گی کہ ان پر آپ اپنا تجزیہ دیں. تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے سینیٹر عرفان صدیقی سے. سر، انہوں نے کہا ہے کہ نگران حکومت کا نظام لپیٹ دیا جائے، ختم کر دیا جائے اس نگران حکومت کے سیٹ اپ کو. اب بات یہ ہے کہ عرفان صدیقی صاحب جو ہے نا، وہ جاتے جاتے ایک محمل قسم کی گفتگو فرما گئے، بے تکی بات فرما گئے. یہ نگران حکومت کا سیٹ اپ کیوں ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. نگران حکومت کا سیٹ اپ اس لیے ہے کہ ہمارے سیاستدان جو ہیں ایک دوسرے پہ خود اعتبار ہی نہیں کرتے. ان لوگوں کو ایک دوسرے پہ اعتبار نہیں ہے تو ہمیں جو ہے نگران سیٹ اپ لانا پڑتا ہے، اور اس کے لیے شرائط ہیں، قواعد ہیں کہ یہ کوئی الیکشن نہ لڑ رہا ہو یا بظاہر کسی سیاسی جماعت سے اس کا تعلق نہ ہو، اور اس پہ کتنی اسکروٹنی ہوتی ہے. اب عرفان صدیقی صاحب نے یہ جملہ تو کہہ دیا، بڑے آرام سے انہوں نے سٹکا دیا اس کو. لیکن کیا فرض کریں آج اگر سرداری صدر ہوتے ہیں اور پارلیمنٹ ختم ہو جاتی، اپنی مدت پوری کرتی ہے، تو ان کی حکومت کے نیچے جو ہے وہ الیکشنز ہوں گے تو عرفان صدیقی کو منظور ہوں گے؟ یا اگر شہباز شریف ہی اگلے الیکشنز کروا دیں تو کیا پیپلز پارٹی کو منظور ہوں گے یا باقی جماعتوں کو منظور ہوں گے؟ دھاندلی کی طرف آوازیں نہیں نکلیں گی. ابھی تو نگران حکومت کرا رہی ہے، نیوٹرل گورنمنٹ کرا رہی ہے، تو لوگوں کے سر پھاڑ رہے ہیں، پکڑ کے چیخ چیخ کے دماغ خراب کر دیے. امیجن کہ یہاں نگران حکومت نہیں ہے. ویسے ایک اور آپ کو بات تو ہونی چاہیے، دنیا میں پاکستان شاید واحد ملک ہے جہاں پہ نگران سیٹ اپ آتا ہے، کیونکہ یہاں پہ پولیٹیشنز ہر ایک اعتبار کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کا نہیں کرتے، کیونکہ ان کو پتہ ہی خود کتنے جھوٹے ہیں، خود کتنے دو نمبر ہیں، خود کتنے فراڈیے ہیں. تو یہ کیسے ایک فراڈیا دوسرے فراڈیے پہ اعتبار کر لے؟ تو یہ تو ہو نہیں سکتا. تو اس لیے عرفان صدیقی کی خواہش جو ہے وہ دل میں ہی رہ جائے گی. ایک اور خواہش ہے عرفان صدیقی کی، وہ کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ نیب ختم ہو جائے. یہ ہونی چاہیے. نیب جب تک ختم نہیں ہوگی پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. جب تک نیب ختم نہیں ہوگی پاکستان میں بزنس نہیں پروموٹ ہوگا. اور نیب نے آج تک لوگوں کو پکڑنے کے نام پہ انہوں نے 10 گنا زیادہ پیسہ خرچ کیا ہے بجائے اس کے کہ ریکور کیا ہے. ایک کسی پولیٹیشین کو نیب چارج نہیں کر سکی، کسی کو جیل نہیں کر سکی، کسی کے اوپر کو کیس نہیں پروف کر سکے، نہ بیوروکریٹ کے اوپر. ایک ایک سال 2 سال فواد حسن فواد ہو یا ملک وہ آج چیمہ ہو، ان ساروں کو جیلوں میں بھی رکھا، پرسیکیوٹ کیا، ہر ایک کے ساتھ زیادتیاں بھی کی انہوں نے، اور یہ ثابت نہیں کر سکے. تو نیب قوانین جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی پاکستان میں وہ جو ہے ایک رکاوٹ ہے انویسٹمنٹ کے لیے. رائٹ. مبشر صاحب، نیکسٹ خواہشات ذرا لمبی لسٹ ہے سینیٹر تاج رخانی کی. وہ کہتی ہیں کہ ہماری تنخواہ 1,60,000 سے زیادہ کی جائے. یہ کم تنخواہ ہے، کم ہے یہ. بالکل، اور ان کی سزائیں بھی زیادہ ہونی چاہیے نا. پھر جب چوری میں پکڑے جاتے ہیں، 2 نمبریوں میں پکڑے جاتے ہیں، تو ان کی سزائیں بھی اتنی زیادہ ہونی چاہیے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں کہ اشفاق احمد صاحب نے بتایا مجھے کہ وہ جرمنی میں تھے، مرحوم اشفاق احمد صاحب، اور پڑھاتے تھے. تو ان کو کوئی ٹریفک کا ٹکٹ مل گیا، تو ٹکٹ مل گیا اور پھر وہ وہاں پہ عدالت میں جانا پڑتا ہے. تو وہ گئے، جب ٹائم گزر گیا تو جج نے ان کو پوچھا کہ آپ مقررہ وقت پہ آپ نے آ کے یہ چلان کیوں نہیں جمع کرایا؟ تو ان کا جی میرا کام ایسا ہے جس کی وجہ سے میں پورے دن آ نہیں سکتا اور میں ویکینڈ پہ ہی نکل سکتا ہوں. انہوں نے کہا آپ کیا کام کرتے ہیں؟ ان کا جی میں اس جگہ پہ استاد ہوں، یہاں پہ میں اردو پڑھا رہا ہوں اس یونیورسٹی میں. تو جج کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ ہمارے درمیان ایک استاد محترم ہے، تو ان کے احترام میں ہم سارے کھڑے ہوں گے جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوتا. اور پھر اس نے کہا آپ کو فائن ڈبل ہوگا سر، کیونکہ استاد ہونے کی حیثیت سے آپ کو ایکسٹرا ویجیلنٹ ہونا چاہیے تھا کہ آپ تو بالکل بھی قانون کو نہ توڑیں. تو پھر سینیٹر صاحبہ کو بھی بتا دیں کہ جتنے چوریاں کریں گے نا پھر ایم این ایز اور سینیٹرز اور سارے، ان کو بھی پھر کیپٹل پنشمنٹ ہی ملنی چاہیے. سزائیں، تنخواہیں بھی دیتے ہیں زیادہ، اور پھر ان کو سزائیں بھی اسی طرح ملیں گی. چلیں
मुबश्शिर साहब, सेनेटर साहिबा ने इसका भी हल निकाल लिया। वो कहती जब हम ईवान में आते हैं, हमसे हलफ लेते हैं, कसम उठाकर उस पर अमल ना करने से बड़ा गुनाह होता है, तो ये कसम लेने का सिलसिला बंद किया जाए। तो आप झूठ बोलना छोड़ दें, उनसे क्या आप बेहतर इंसान बने ना। ये ऐसी बात है कि वो एक एक्ट्रेस थी ना, वो तंग कर रही थी डायरेक्टर को, तो कहती है जो ड्रिंकिंग का सीन है इसमें असली शराब पियेंगे हम ताकि इफेक्ट रियल हो। तो उसने उसको कहा एंड में खुदकुशी के सीन में असली जहर भी इस्तेमाल करेंगे ताकि वो भी इफेक्ट कर रियल होगा। तो सेनेटर साहब कहें आप यहाँ पे भी 2 नंबरी कर रही हैं और आखिरत में भी 2 नंबर है, आप फिक्र ना करें। जो कुरान उठा के झूठ बोलता है उसकी कोई बख्शिश नहीं है। राइट। सेनेटर ताज रुगानी कहती हैं कि अगर वो एक दिन के लिए वजीर आजम बनती हैं तो फिर सबकी अयाशियां खत्म कर देंगी, किसी को मुफ्त पेट्रोल नहीं मिलेगा, मुफ्त बिजली नहीं मिलेगी और एयर टिकट्स नहीं मिलेंगे। झूठ बोलती हैं। जितनी देर ये सेनेट में 5 साल रही हैं, इन्होंने कितनी ऐसी जो है मोशंस पेश कर दी उस सेनेट में कि ये सारी चीजें खत्म होनी चाहिए। इन्होंने कौन सा ऐसा मोशन पेश किया जिसमें ये कहें कि जी पेट्रोल नहीं होना चाहिए या मुफ्त बिजली नहीं होनी चाहिए या ये जो डिस्कोस के मुलाजमीन इनकी बिजली खत्म होनी चाहिए या ब्यूरोक्रेट्स हैं या कुछ जजेस हैं इनकी मुराद खत्म होनी चाहिए। इन्होंने एक बिल दिया ऐसा, तो अब जाते हुए आखिरी दिन पे ये बात कर रही हैं। इनसे के ड्रामे मत करें, झूठ मत बोलें। आप लोगों के झूठ बोल बोल के आप लोगों ने इस मुल्क को इस हाल पे पहुंचा दिया। आप लोगों को शर्म भी नहीं आती है, इतने आप लोग झूठे और मकरू किस्म के लोग हैं। एक और पॉइंट उठाया सेनेटर साहिबा ने, कहती हैं कि जब सेनेटर्स को रिहाइश दी जाती है फिर रिहाइश के पैसे क्यों मिलते हैं? बशीर साहब, ये तो वाकई क्यों मिलते हैं फिर पैसे? तो ठीक है, उन्होंने क्यों लिए? उस वक्त सेनेट में क्यों नहीं बोली जब ये थी वहां पे? मेरा ये कहने का मतलब है अब क्यों बहू बहू कर रहा है सारा कुछ? आखिरी दिन अच्छा बनने की कोशिश कर रही हैं। हम बेवकूफ हैं, हमें पता नहीं है कि ये लोग कितने करप्ट हैं, हमें पता नहीं है कि ये लोग कितने खाबे हैं इनके, और आज ये आखिरी दिन ये बातें कर रही हैं। ये 5 साल में इनकी कारकर्दगी उठा के देख लें, एक तो सेनेट में बोली भी नहीं होगी शायद, और बोली भी होगी तो इन बातों पे नहीं बोली होगी। राइट। वशी साहब, अब आगे ख्वाहिशात हैं जी सेनेटर फैसल जावेद की। कहते हैं कि मखसूस नशिस्तें हमारा हक हैं, हमें दी जाएं, साडा हक इत्थे रख। क्या कहेंगे? बात यह है कि एक आदमी देखे, कितने दुख की बात है कि सेनेटर रहा इस मुल्क का, यानी कानून बनाने वाला, आइन बनाने वाला इदारा है वो, और उस बेवकूफ आदमी को ये पता ही नहीं कि आइन क्या कहता है। उस डफर आदमी को यही नहीं पता कि कानून में इस बात की गुंजाइश है कि नहीं है, और वो जो बात कर रहा है वो गैर आइनी और गैर कानूनी है। तो ऐसे जाहिल मुतलक की स्टेटमेंट के ऊपर मैं क्या जवाब? चले मुबश्शिर साहब, जरा सेनेटर मौला बख्श चांडियो की ख्वाहिश पे का जवाब दे दें। वो कहते हैं उन्हें अलविदा कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन साथ एक सजेशन देकर गए हैं बड़ी अच्छी कि अगर पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है तो हमें रंजिशें खत्म करना होंगी। ये बहुत अच्छी बात है, यानी लिव एंड लेट लिव की जो पॉलिसी है एंड मूव अहेड, ये बड़ी एक मुस्बत सोच है कि जिसमें अपनी सियासी दुश्मनियां जो है उनको ख़त्म कर सकें और आगे लेके जाएं। और इसी में आप वाइडर पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो मैं आपको कल भी कह रहा था कि इंडिया और पाकिस्तान है या पाकिस्तान और ईरान है, आपको हर एक से अपने डिफरेंसेस ख़त्म करने हैं और मुल्क को आगे लेके चलना है। तो ये मौला बख्श चांडियो साहब की बहुत अच्छी राय है, आई रिस्पेक्ट हिम फॉर दैट। राइट। एक और जरा उन्होंने मुश्किल से ख्वाहिश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि उन इदारों से कहना चाहता हूँ जो जमहूरियत में घुसते हैं, जमहूरियत में ना घुसो, जमहूरियत को डीरेल मत करो। असल में प्रॉब्लम ये है कि इदारे ना भी घुसना चाहें तो आप घुसाते हैं। आप खुद देख लें इमरान खान को कि जब इदारे कह रहे थे हम न्यूट्रल रहना चाहते हैं, तो वो कहता था न्यूट्रल तो जानवर होता है, न्यूट्रल क्यों हो? ये सियासतदान खुद नहीं रहने देते इदारों को बाहर, क्योंकि इनको इदारों को इस्तेमाल करके तो ऊपर आते हैं। इदारों की बैसाखियों पे बैठ के तो ये लोग ऊपर आते हैं, हुकूमतें करते हैं, उनसे ही मुराद लेते हैं और फिर अपना जो है वो उनको ही बुरा कह रहे होते हैं। तो अगर सियासतदान हमारे ठीक हो जाए तो किसी इदारे की आने की हिम्मत ही नहीं, ना वो आएगा। राइट। मुबश्शिर साहब, सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि हमारे 3 हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है, अफगानिस्तान, ईरान, भारत, इनके साथ ट्रेड अच्छी की जाए। इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान ने अगर तरक्की करनी है, पाकिस्तान में अगर हमारा मुस्तकबिल बेहतर होना है, तो हमें अपने हमसायों के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात रखने पड़ेंगे। और अफगानिस्तान की हद तक तो मुझे समझ आता है कि हमने बड़ी कोशिश की और वो पागल हुए हैं, लेकिन भारत और ईरान से हम बेहतर कर सकते हैं, यकीनन हम लोग भी पहल कर सकते हैं। और इसमें पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम का ही फ़ायदा है अगर हम अपने
हमसायों के साथ हम तजारती ताल्लुकात हमारे होते हैं. आई एग्री विद मुशाहिद हुसैन साहब. राइट. मुबश्शिर साहब, आखिर में सेनेटर सादिया अब्बासी ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है. कहती हैं कि नई असेंबली आ गई है, हम चाहते हैं कि ये आइन में मौजूद सुकम को दूर करें. हो सकता है ये? तो निशानदेही भी तो कर देना किस चीज को कम कह रही है. बेहतर होगा ना कि पूरी बात करें ना. आइन में तो अगले 100 साल तक सुकम रहेगा कोई ना कोई, और वो जो वक्त पड़ने पे उसकी दूरी भी होती रहेगी, उसका सद्देबाब भी होता रहेगा. लेकिन एक जनरलाइज बात करके आई मीन क्या अचीव करें ये लोग? सेंटर से वाकई इस मुल्क के, इनको खुद नहीं पता लॉ क्या होता है, लॉ मेकिंग क्या होती है, और लॉ पे एक्ट कैसे करते हैं. इसलिए इस मुल्क का ये हाल है कि यहाँ पे सेनेटर्स जो सबसे हमारी सुप्रीम बॉडी है, उसके मेंबर्स का दिमागी इंटेलेक्ट और एकेडमिक इंटेलेक्ट जो है इतना लो है, इतना कम है, तो फिर बाकी पूरे मुल्क का इन्होंने बेड़ागर की करना है ना, जो किया है इन्होंने. मुबश्शिर साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे, ये किसी की ख्वाहिश नहीं है, अगर आप एक दिन के लिए वज़ीर आज़म बने, आप क्या करेंगे? आपकी कुछ क्या भी नहीं ख्वाहिशात करूंगा होंगी? मैं. अपना कुछ भी नहीं करूंगा. ये बेकार की बातें, किताबी बातें हैं कि एक दिन का वजीर आजम बन जाए. एक दिन का वजीर आजम कुछ नहीं कर सकता, और एक वो ना ब्यूरोक्रेट उसकी बात पे अमल करेंगे, उनको पता है कल इसने होना नहीं है, तो हम ही अपने बेवकूफ़ों वाली बात है, पागलों वाली ख्वाहिश है, उसको पूरा कर लें. देखिए, राइट. हुक्मरान होना जो होता है वो बड़ा एक सीरियस काम होता है, और यानी यहाँ पे भी और बाद में भी उसकी पकड़ भी उतनी है, और ये कोई आसान चीज़ें नहीं होती हैं. हम सबको लगता है कि ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए तो पाकिस्तान बेहतर हो जाएगा. लेकिन मैं आपको आज बता देता हूँ कि सिर्फ एक चीज़ अगर इस मुल्क में ठीक हो जाए, एक चीज़ अगर ठीक हो जाए, तो फिर पाकिस्तान में मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स हमारे ख़त्म हो जाएंगे. अगर हमारा अदालती निज़ाम सही हो जाए, तो अगर हमारे जजेस जो हैं वो ऑनेस्ट, कैपेबल और यानी खुदा तरस हो जाएं अक्रॉस द बोर्ड, तो फिर यकीनन पाकिस्तान ठीक हो जाएगा. अब आपने जो पिछला प्रोग्राम किया था रिकॉर्ड, उसमें आपने आज जुल्फकार अली भुट्टो वाली बात की थी कि 42 साल के बाद जुल्फकार अली भुट्टो का इंसाफ मिल रहा है. कोई इंसाफ होता है? एक आदमी की जान ले ली आपने, वो चला गया, वो अपने बच्चों के सर पे नहीं, घर पे नहीं, अपनी जिंदगी से चला गया. आप कह रहे हैं कि आप उसको मरने के बाद हमने इंसाफ दे दिया. नहीं, ये इंसाफ नहीं है. ये आप अपने आप को वो क्या कहते हैं, एब्जॉल्व करने की बातें कर रहे हैं. तो आज जब अदालतों ने उस ट्रायल को गलत करार दिया, तो आप देखते हैं कि यही अदालत सुप्रीम कोर्ट जो है, ये उन जजेस के मुतल्लिक क्या काम देती है. चले वो जिंदा नहीं है तो कब्रों के ऊपर तो पहरा लग सकता है, उनको अरेस्ट किया जा सकता है, ताकि लोगों को नजर तो आए अलामती तौर पे. तो आप इस मुल्क का अदालती निज़ाम ठीक कर दें, बाकी निज़ाम को ठीक हो जाएगा. राइट. बहुत शुक्रिया मुबश्शिर साहब, आपके कीमती वक्त और कीमती तजज़िये का. नाज़रीन, इसके साथ ही हमारा आज का ये प्रोग्राम खत्म हुआ. अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. हमें इजाजत दें. अल्लाह